So I hope you can see the screen. Some slide I have shown. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. जी सर. So जी सर. So as a start, I am sharing some random news items, which may be from recent months or maybe within last 2-3 years. ठीक है. So this one shows. Just a minute. तो क्या आप जानते हैं कि अभी जो जुलाई गुजरा है, बिकॉज वी आर इन अक्टूबर मंथ, जुलाई 23. तो बाहर जो पत्थर बड़ा था वही था जिसमें वो बनी हुई थी ये पत्थर. अरे माइक्रोफोन्स अपने ऑफ कर लें प्लीज. मुझे लगा ध्यानचंद के पास पहुंच रहे थे. जरा इनको बोल दें कौन कोई देख रहे हो तो स्क्रीन. हाँ, so July 3rd to July 5th were the hottest ever days on earth. यानी जो हिस्ट्री है हमारी रिकॉर्डेड हिस्ट्री, उसमें जितना टेम्परेचर अर्थ सरफेस का मेजर किया गया जुलाई 3 से जुलाई 5, उतना पहले कभी नहीं किया गया. एक न्यूज ये है. This is from last year. Agra sizzles sizzles at 41.4. और इस साल का जो फरवरी था वो प्रोबेबली दी हॉटेस्ट फरवरी एवर. लास्ट ईयर का मार्च था, लेकिन इस साल फरवरी में ही वो ये हालात हो गए थे. एक रैंडम न्यूज आइटम्स हैं. 7.4 लाख 7.4 लाख भारतीयों की हर साल भीषण गर्मी से मौत. दुनिया जलवायु परिवर्तन की वजह से पृथ्वी के गर्म होने की दवाई दुनिया की 10वीं मौत का जिम्मेदार था. ये this happened in China last year, where you can say the rain equal to rain of few months was seen in few hours only. The last year. This one is specific to our country. Tenfold rise in intense forest fires in India from 2000 to 2009. तो मैंने सारे मंदिरों की चंचल राम प्लीज म्यूट. मैम प्लीज म्यूट रखिए. So, tenfold rise in intense forest fires in India from 2000 to 2019. This study points to climate change. Then this is a slightly different news. Floods are shifting and becoming fatal. We should be worried. This is again from India. And you see, many studies have shown that our cities, like this is for Bengaluru, other cities have also faced a similar situation. 5 to 7 times the average rainfall, यानी इतना बढ़ गया था. और फिर एक ट्रेंड क्या है कि ट्रेंड इज टुवर्ड्स फ्लैश रेन्स. फ्लैश रेन का मतलब ये हुआ कि बहुत कम टाइम में बहुत बड़ा वॉल्यूम ऑफ रेन, यानी बहुत सारी बारिश हुई जो कि नॉर्मल कोर्स में उतना पानी गिरना था से कुछ दिनों में वो कुछ आवर्स में हो जाना. दिस इज कॉल्ड फ्लैश रेन. तो ये इट हैज बिकम अ कॉमन साइट. फिर ये एक देखिए दूसरा, ये बहुत रिसेंट न्यूज है. मानसून के बदलते रुझान से हो रही चिंता. एंड एज यू नो वी हैव बीन स्टडीइंग फ्रॉम स्कूल डेज. वी आर अ फार्मिंग बेस्ड सोसाइटी. So if we have some developments which are having negative impact on crop production, then naturally it is a serious issue for all of us. See, now this news talks about a completely different phenomena. Lightning and heavy rains kill 36 in northern India in one day. लेकिन उसमें नीचे पढ़े, अथॉरिटी से क्लाइमेट ब्रेकडाउन इज ड्राइविंग सर्ज इन डेडली मॉनसून सीजन वेदर इवेंट्स. यानी इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज.
The similar thing expressed here, 34% rise in lightning strikes. Then again, the similar lightning strikes. Now, this is related to Europe. National emergency meltdown, first ever red alert on deadly heat wave issues. ये last summer का है यूरोप के, और the numbers are showing the temperature. अच्छा, see, temperature is actually you observe the pattern. तो हमारे यहाँ क्योंकि इस रीजन में 40 इज इन नॉर्मल, तो हम 40 का 40 होगा, या 43 44 जा रहा है तो हम उसे एबनॉर्मल मानते हैं. लेकिन अगर कुछ जगहों पर 40 टच ही नहीं करता था एंड इट इज क्रॉसिंग 40, देन नेचुरली दैट इज एबनॉर्मल फॉर देम. सो यूरोप में 41 दिखाया आपको नीचे एक जगह. इसके बाद दिस इज अगेन यूरोप, एंड द नंबर्स आर रिफ्लेक्टिंग द टेम्परेचर्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप. अगेन यू सी, this is something which has never happened. Then sometimes back this news was widely reported. What is happening that some of the places in the world, and in fact many places in the world, are seeing such high temperatures that although they are presently occupied, but if we go in the same way, then it will not be possible to live there. So it is related to one of the most important countries in the earth. It is just a sample only. That doesn't mean only there it is happening, but it is happening throughout, as I have shown: India, Europe, Middle East. 55%. This is related to floods in Germany. This was again an unprecedented event, flash floods in Germany. So, see, I have shown you some random news. On the face of it, the news items appear about unconnected events. आप अगर ऐसे देखोगे तो आप कहोगे अच्छा मॉनसून एक अलग चीज है, लाइटनिंग बिजली गिरना एक अलग चीज है, टेम्परेचर बढ़ना एक अलग चीज है, फ्लड आना एक अलग चीज है. लेकिन इन सबको दिखाने का पर्पस ये है कि these all developments have a common thread. Common thread क्या है? This is commonly known as climate change. So climate change is driving all these events throughout the world, and the situation is fast becoming alarming. If we continue, if the same goes on, then it is a threat to the existence of life on Earth. And in fact, it is a threat to the planet itself. So this is, in a general term, for all these events is climate change. But the most important part of climate change is global warming. So what is global warming and how it is leading to such climate change, I'll try to cover it briefly. So this slide shows the essence, the basic reason behind climate change and global warming. See, there is a greenhouse effect. All of us have studied this effect in schools. Almost for all the energy on Earth, the source is sun. The solar energy comes to the Earth, but only 70% of that is absorbed by Earth, and rest 30% is reflected. When this reflected energy is traveling back in this space, there is a blanket of gases surrounding our Earth surface, which we call as atmosphere. There are many gases in it. Names are written here also. So when this heat is going back, a part of that energy is absorbed by these gases. And because of this absorption, the Earth becomes slightly warmer than it would have been in the absence of these gases. Why it happens? So it is again a natural phenomena, and greenhouse by itself is not something you can call as a negative phenomena or a bad phenomena. The reason is it helps in maintaining the temperature of Earth. Otherwise, after sunset particularly, you will see such a huge dip in temperature that it will not be possible to have life on Earth. So this heat is useful.
It is keeping the earth suitably warm, and that is why greenhouse effect by itself is not a bad thing. लेकिन अगर अब मान लीजिए ऐसा हो कि किसी वजह से इन गैसेस की जो अमाउंट है, जिसको हम कंसंट्रेशन बोलते हैं साइंटिफिकली, अगर इनका कंसंट्रेशन बढ़ जाए इनके नेचुरल लेवल से, यानी इक्विलिब्रियम वैल्यू से, नेचुरल वैल्यू से अगर बढ़ जाएगा, what will happen? They will start absorbing more heat, more energy, and more energy leads to more heat, and more heat means higher temperature of earth surface. So this is basically the you can say impact of higher greenhouse gases. अगर greenhouse gases का concentration बढ़ेगा तो अर्थ सरफेस की जो वार्मिंग ऑफ अर्थ सरफेस है दैट विल इंक्रीज. इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, यानी इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग. अच्छा, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई द gases, the concentration of these gases has increased. So it has been increased because of human activities. इसलिए हमने जो ऊपर आप देखोगे हेडिंग लिखी है ह्यूमन एनहांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट. तो क्या एक्टिविटीज हैं वो हमारी? यू सी, मोस्ट ऑफ आवर इंडस्ट्रियलाइजेशन बेस्ड एक्टिविटीज आर बेस्ड ऑन जनरेटिंग एनर्जी बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स. और फॉसिल फ्यूल जो है ना वो CO2 का स्टोर हाउस है. जैसे आप कोयला बर्न करते हो, कोयला बर्न करोगे तो CO2 रिलीज हो. तो फॉसिल फ्यूल्स, whenever fossil fuels are burned for generating energy, they release it causes release of CO2 in the atmosphere. अब CO2 क्या है? CO2 का एक लिंगरिंग इफेक्ट है. लिंगरिंग इफेक्ट मींस इट, if you release it once in the atmosphere, it can be there for thousands of years. तो हुआ ये कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज लेड टू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, and burning of fossil fuels has led to increased concentration of CO2 in the atmosphere. That has led to enhanced greenhouse effect, causing global warming. This is the basic, you can say. I have tried to convey it in a brief and simplified way. Now you may ask that why these gases are always there in the atmosphere, why they are not absorbing the solar energy when it is coming from the sun. So the answer lies here. I am sure you all have experienced it. Sometimes when we park our cars without shade and all windows are closed, when we come back inside the car, we find that the temperature has increased. क्या हुआ है? The energy from sun is able to penetrate through the closed windows and come inside the car, but when returning, it is unable to return because of these closed windows. So here the closed windows are acting as the greenhouse gas blanket. So this is a simple example. तो हुआ ये कि जब से 300 सालों में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साल हैं, हमने करीब करीब 1/4 फॉसिल फ्यूल्स को कंज्यूम कर लिया, बर्न किया. That has led to increased concentration of CO2. इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले जो CO2 कंसंट्रेशन था वो 280 ppm के आसपास था. आज की डेट में इट इज 423 पार्ट्स पर मिलियन, और इट हैज लेड टू एन इंक्रीज ऑफ about 1.2 degree centigrade in the average temperature of earth surface. तो जी जो एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस है वो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड. उसके ऊपर 1.2 बढ़ चुका है, तो दैट मींस दिस 1.2 इज ग्लोबल वार्मिंग. नाउ यू मे आस्क, आप सोच सकते हो, कह भी सकते हो कि 1.2 डिग्री तो बढ़ा है, दैट इज नॉट अ बिग थिंग. अभी कल टेम्परेचर जो था उससे हो सकता है आज 1 डिग्री बढ़ गया हो, तो हमें तो कुछ फील नहीं हो रहा है. बट इट इज नॉट दैट. See, this 15 degree and 1.2 degree rise is average temperature of the whole earth surface, which includes a large part of oceans also. So net effect on the land area is much more. और इसको इससे समझ सकते हैं, लास्ट लाइन पढ़ें. What this 280 to 423 ppm of CO2 has done is, it has led to so much excess heat in the atmosphere
which would have been released by 4 lakh nuclear bombs of Hiroshima bombing size. यानी जो ग्लोबल वार्मिंग आप अभी फील कर रहे हैं वो उतनी है कि अगर 4 लाख न्यूक्लियर बॉम्ब्स हम छोड़ दें एटमॉस्फेयर में, जितनी हीट वो रिलीज करेंगे उतनी हीट ऑलरेडी मौजूद है एटमॉस्फेयर में बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज CO2. एंड दिस इज एक्चुअली व्हाट ग्लोबल वार्मिंग इज. अच्छा, now I am giving you the second part of this problem. Every one of us knows that trees are the sink of CO2. CO2 absorb करते हैं trees, आप सब जानते हो natural things हैं. तो जरा इसको देखें इस स्लाइड को. The total age of Earth is 4.6 billion years. अब इसको अगर हम स्केल डाउन कर दें 46 ईयर्स पे, सबने किया हमने क्लासेस में, स्कूल्स में, कॉलेज में. Let 4.6 billion is equal to 46. Then on that scale, human presence on the earth has been for 4 hours only. And on the same scale, the industrial revolution began just a minute ago. And in that time, we have destroyed more than half the world's forests. So, आप compare करिए जरा 46 years to 4 hours and then 1 minute. So, see, on one hand, we are burning the fossil fuels and increasing the CO2 released in the atmosphere. On the other hand, we have been cutting the natural sinks of CO2. So, ये होना ही था. Net effect is you have released 4 lakh nuclear bombs because of these two combined effects. और बहुत से लोग अभी भी ये बात करते हैं डिस्कशन कि क्लाइमेट चेंज तो बस थियरी है, नहीं है, वेस्टर्न वर्ल्ड का है, ईस्टर्न वर्ल्ड का है. बट आई हैव फाउंड दिस इज द बेस्ट statement on this when the founder of Amazon has said that just like photosynthesis and gravity are scientific facts, similarly climate change is a reality. Now, if we talk about our country, we are also vulnerable to this climate change, and we, as you know, we are a hugely distributed, geographically distributed country. So we face different kind of problems. Like our coastal cities are facing a problem because of sea level rise. Some cities are facing problem of heat waves, and as I have mentioned, we are an agriculture-based society. So naturally, if in some place the normal temperature has been up to maximum say 42, and it starts reaching 45, then it will become difficult to work in that temperature. So that leads to reduction in labor effort, as well as higher temperature can lead to adverse effect on production of crops also. So that is also a challenge. So these are some of the effects I have mentioned. Then there are health effects also, some direct effects, like I have mentioned because of high temperatures, some indirect effects like effect on diabetes, circulatory, respiratory, mental health. Then vector-borne diseases like chikungunya, etc. They can easily survive under such a climate. So this is all happening now, and climate emergency, a national security concern, says Red Cross. Everything is happening. So this first part, I have tried to convey the challenge, the threat which is there. And in the second part, let us talk about, because you know, historically the human civilization has tried to find solution for every threat. So in this case, biggest challenge is not finding new technologies. There are many technologies which exist, but the requirement is to create awareness and build understanding. So in this, if we move forward, so the idea is to limit this temperature rise, which has already reached 1.2, and it is known as now collective goal of humanity.
under the initiatives of United Nations. So what is the target? That we want to limit this rise to 1.5 degree by 2100. Already 1.2 हो चुका है, तो we have margin of 0.3 only. और ये ऑप्टिमिस्टिक टारगेट है. पेसिमिस्टिक इज अगर हम 1.5 पर नहीं रोक पाए तो 2 डिग्री तो क्रॉस करने नहीं देना है बाई द ईयर 2100. दैट इज द आइडिया. हाउ इट विल बी अचीव? नेचुरली one of the major ways is limiting the CO2 emissions. So it is said that we need to cut the CO2 emissions by half by 2030 and make these emissions net zero by 2050. These are the targets. All countries in the world are committed to these targets and they are working at their own levels in reducing the CO2 emissions in their countries. Now, if we talk about the CO2 emissions sector-wise, see, one of the major components is the energy sector, like you can see here. And out of the energy sector, one of the major components is the electricity sector, electricity and heating. So now, why electricity is one of the major components of CO2 emissions? The reason is written here. I'm sure all of you know that the most common method of generating electricity is by burning coal. But when you burn coal to generate 1 unit of electricity, it leads to almost 1 kg of CO2, exactly 850 gram. But if you consider losses and all, it is almost 1 kg. What is 1 unit? So 1 unit is when you use 1000 watts. For example, you have used 10 bulbs of 100 watts each for 1 hour. That is 1 unit of consumption of 1 unit of electricity. आपके घर में जो बिल आता है, that is based on consumption of units, electricity units. तो इस लेक्चर के बाद आप जरूर देखिएगा अपना बिल. अगर आपका बिल 300 यूनिट्स है लास्ट मंथ का, तो इसका मतलब ये है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी CO2 फुटप्रिंट या कंट्रीब्यूशन जो है वो 300 kgs है. अगर आपका 400 का बिल है तो 400 kgs, लाइक दैट. तो इससे ये पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी हैज ए डायरेक्ट कनेक्शन विद CO2. अब इलेक्ट्रिसिटी जो है आज के दौर में, आप हो सकता है कहो कि साहब आप तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, आप तो इलेक्ट्रिसिटी की बात करिए, मगर हमसे क्यों कर रहे हैं? हम तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं है. बट द थिंग इज दैट यू मे नॉट बी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, बट यू आर a user of electricity, and you are one of the reasons why electricity requirement is there, and it is increasing. See, in India we are heading towards a huge expansion of electricity network, and we will surpass USA and Europe in terms of electricity requirements in next 20-30 years. Then I'm sure most of you, maybe all of you, are users of air conditioners. So I'm not saying that air conditioner is a bad thing, but I'm just sharing how their number is increasing and why that is a challenge. Because you see, AC is the highest electricity consuming device, and the way they are coming into the system, almost 10 new ACs are being added every second for the next 30 years. So that is another challenge. So the thing is that I wanted to convey that climate change is particularly global warming is a major challenge. To address this, we have to minimize our carbon emissions. Electricity is a sector which is related to all of us, which needs to be decarbonized. How we will decarbonize? Three approaches. First is using green energy sources for electricity generation. ग्रीन सोर्स उसको बोलते हैं जो विच इज नॉट लीडिंग टू CO2 emissions. यानी फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी से अगर आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, कोई CO2 emissions नहीं है, इट्स ए ग्रीन सोर्स. विंड से जनरेट करेंगे, कोई CO2 emissions नहीं है, ग्रीन सोर्स. वाटर से जनरेट करेंगे, कोई एमिशन नहीं है, ग्रीन सोर्स. तो फर्स्ट इज शिफ्टिंग
two green sources of energy for electricity generation. Second is increasing energy efficiency and promoting energy conservation. यानी जैसे आपने एलईडी बल्ब पर शिफ्ट किया फिलहाल पुराने 100 वॉट बल्ब से, वो एग्जांपल है एनर्जी एफिशिएंसी का. प्रोमोटिंग एनर्जी कंजर्वेशन, आप वेस्टेज अवॉइड करिए, तो वो एग्जांपल हुआ एनर्जी कंजर्वेशन का. और तीसरा हुआ, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर को अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पर शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये एक तीसरा एग्जांपल है. So these are three ways of decarbonization. Every one of us can play a role. Our institutions should play a role in adopting all these things. And institutions are doing their job, many institutions. For example, in AMU, we have a large setup of solar energy, probably the largest in any academic institution. We are saving around 20,000 kg CO2 emissions per day by using this setup. These are some of the pictures of our solar setup. And you see, rapidly the coal-based generation is being removed, eliminated from the system, and we are shifting. All new capacity being added is solar, wind, or hydro. Just a minute, I'll share another slide also. सर आवाज नहीं आ रही है. आवाज आ रही है अभी? Yes, sir. यस सर अब आ रही है. आ रही है, एक मिनट आ रही है सर. हाँ हाँ, रुके. विद फैमिली भी अटेंड कर रहे हैं? नहीं, करें. किड्स हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन दिस. बच्चों को बताइए ये बात ग्लोबल वार्मिंग के बारे में. इस देख पा रहे हैं स्लाइड? यस सर. जी सर. ओके. Yes, sir. यस सर. यस सर. दिस इज Yes, sir. यस सर. चलिए ठीक है, वो बता दी ना. This is I am showing by this slide these basic solar PV solar system which is installed in a building or in a house or in a college. So what we do normally is we have solar panels on the rooftop, and then there is an inverter. इन्वर्टर जानते होंगे बहुत से लोग आप में से. वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, और फिर उसको हम कनेक्ट कर देते हैं घर के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में या कॉलेज के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, जिसमें कि आप पोल से सप्लाई आ रही है आपका. ग्रिड से मतलब यहाँ पोल समझ लीजिए बस फिलहाल के लिए. ये बेसिक सिस्टम है सोलर एनर्जी जो कि यूज किया जाता है. रूफटॉप इसलिए कहा क्योंकि इसमें स्पेस का यूटिलाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन है, बट ऐसी कोई कंडीशन नहीं है. इफ यू वांट यू कैन इंस्टॉल ऑन ग्राउंड आल्सो. तो इसमें क्या होता है कि हाउ इट वर्क्स, जब आपको
आपका जनरेशन सोलर जो आपने पैनल्स लगाए हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट से कम है, अगर तो जितना सोलर कंट्रीब्यूट कर रहा है वो होगा, और जो कमी है वो पूरी होगी ग्रिड से। जैसे यहाँ पे हमने दिखाया कि 3 किलोवाट अगर चाहिए था, 2 किलोवाट उधर से आया, सोलर ने दिया अगर, तो 1 किलोवाट आपको ग्रिड से मिल गया। तो आपकी जो सेविंग हो गई वो 2 किलोवाट की सेविंग हो गई। और 2 किलोवाट को कितने टाइम आपने यूज किया, अगर मान लीजिए 4 आवर्स यूज किया, तो आपके 8 यूनिट्स आपने ग्रीन एनर्जी से जनरेट कर दी, यानी ऑलमोस्ट 8 kg आपने CO2 सेव कर दिया। ये इसका एग्जाम्पल हुआ। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि आपकी रिक्वायरमेंट से ज्यादा जनरेशन है सोलर एनर्जी से, यू रिक्वायर्ड ओनली 3 किलोवाट, जनरेशन इज 5 किलोवाट। तो जो एक्सेस है 2 किलोवाट, ये एक्सपोर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली ग्रिड को। और एक्सपोर्ट के लिए कोई आपको ऐसा नहीं कि नया सिस्टम लगेगा, नए वायर्स लगेंगे। जो वायर्स आपके घर में सप्लाई ला रहे थे ग्रिड से यानी पोल से, वही द सेम वायर्स विल कैरी बैक द एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी। तो आपके मीटर में निगेटिव में रिकॉर्ड होगा, यानी ये कि आपको इसका क्रेडिट मिले। अब महीने के एंड में क्या होगा कि अगर मान लीजिए आपने 100 यूनिट इंपोर्ट किए, इंपोर्ट से मतलब ये यहाँ आप इंपोर्ट कर रहे थे जब आप 1 किलोवाट ले रहे, और मान लीजिए आपने 20 यूनिट एक्सपोर्ट किए, तो आपका जो बिल बनेगा वो 100 - 20, दैट इज 80 यूनिट्स पर बनेगा। तो इस तरह से दिस इज अ सिस्टम विच इज फाइनेंशियली बेनिफिशियल, मोर इम्पोर्टेंटली इट इज highly beneficial for environment also, and that is why solar has come up in a big way. And everywhere you see, whether it is airports, railways, households, institutions, colleges, industry, everything is getting solarized, everything is going towards solar system. So this is something which is a highly useful solution for limiting carbon dioxide emissions. And because as I have mentioned, every one of us is a user of electricity, and we can, for example, if we are in our house, we are shifting to solar energy, because wind is not easily installed in most of the areas. It is highly location dependent, but in our country, most of the places are highly suitable for solar energy. So if we are shifting towards solar, then we can contribute to reduction in CO2 emissions. Likewise, in our colleges also, we should shift towards these energy sources, because they are financially beneficial, as well as, more importantly, they are environmentally beneficial. So करना क्या है? For example, because we all are from universities or colleges, we have a very important role to play. Most important is we have to create awareness about climate question, sustainable development, conservation and green energy, जो कि हम इस प्रोग्राम से कर रहे हैं। ऐसे ही उम्मीद करते हैं कि जो ये बात करनी हुई, आप में से हो सकता है कुछ लोग या बहुत सारे लोग पहले से जानते हो इसके बारे में, लेकिन अगर नया पता चला है तो कोशिश करें कि इसको आगे बढ़ाएं, एंड कन्वे दिस टू योर कलीग्स एंड योर फ्रेंड्स ऑल्सो। सर एक क्वेश्चन है हमारा, अभी आएंगे क्वेश्चंस के ऊपर, अभी क्वेश्चन के लिए ओपन करेंगे। Then we need to adopt green sources of energy in the campuses. We need to promote the culture of conservation and sustainable development. And naturally, रिसर्च क्वेश्चन तो करेंगे ही एड्रेस, जो इससे कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, और ट्रेनिंग तो करेंगे कराएंगे ही, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंट इज वी नीड टू क्रिएट अवेयरनेस, एंड वी नीड टू अडॉप्ट दिस शिफ्ट टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी एज वेल एज एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन. So which can be called as the need for walking the talk. जो हम बात कर रहे हैं वो हम adopt भी करें. So what happens next is up to us. We have a very important role to play. So that is all what I wanted to share in terms of presentation or slides. Now I'll stop this and then I'll open for questions. Just a minute. अभी रुक जाएं एक मिनट. अभी ऐसा है कि क्वेश्चंस के लिए मैं ओपन करूंगा, कुछ देर हम क्वेश्चन आंसर आपके लेंगे.
उसमें एक दो मेरे सजेशंस हैं। पहला सजेशन ये है कि आप जब कोई क्वेश्चन पूछें तो अपना नाम और एफिलिएशन तो बताएंगे ही, अपना सब्जेक्ट भी बताएं जिससे कि आंसर करने में आसानी होगी। दूसरी बात ये कि टाइम शॉर्ट है, क्वेश्चन बहुत सारे होंगे, पार्टिसिपेंट्स भी बहुत हैं, इसलिए अगर हम क्वेश्चंस तक रेस्ट्रिक्ट करें और ओपिनियन जरा कम शेयर करें, ओपिनियन की बजाय जो क्वेश्चन है वो पूछें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए पूछिए। सर क्वेश्चन करें? हाँ हाँ, शुरू करें। सर मैं डॉक्टर काशीनाथ त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी कॉलेज वाराणसी, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से हूँ सर। जी बताइए। सर हमारा एक क्वेश्चन ये है कि अभी जैसे एनर्जी रिन्यूएशन पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, सोलर एनर्जी पे, विंड एनर्जी पे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा हमारे पास जो सोलर पैनल मान लीजिए 25 साल 30 साल की गारंटी पे अभी मिल रहे हैं, अभी हम इंस्टॉल करते जा रहे हैं, लेकिन 30 साल के बाद उसका जो फिर मैनेजमेंट कैसे करेंगे? मान लीजिए जो खराब हो रहा है, जो उसको हम फिर यूटिलाइज करें, उसका मैनेजमेंट कैसे होगा? क्या ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी डिस्पोजल की फिर से? ठीक है, तो इसमें आपका क्वेश्चन जेन्युइन है, लेकिन मैं आपसे एक काउंटर क्वेश्चन करूंगा, फिर आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगा। काउंटर क्वेश्चन ये है कि ठीक है, एग्री किया आपसे कि सोलर पैनल्स की एक प्रॉब्लम आएगी 25 साल बाद, तो आपके नजर में कोई ऑल्टरनेट सोल्यूशन है? नहीं सर, अल्टरनेट में जैसे जब हम जो प्लानिंग बना रहे हैं, पहले हम प्लानिंग एक बनाते हैं, लेकिन उसके साथ उसके प्रबंधन की भी प्लानिंग तो उनको बनानी, मैनेजमेंट। वो ठीक है, उसके ऊपर आऊंगा मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या आपने कहीं पे कोई डिस्कशन में या किसी उसमें कोई आपको लगता है कि अब देखिए इसके दो तरीके होंगे, या तो फिर हम कंटिन्यू करें या कोल तो सर एक काम ये कर सकते हैं कि सोलर पैनल की जो लाइफ लॉन्ग बढ़ाने के लिए हम काम कर सकते हैं, तो सर दूसरी चीज जो यहाँ पे हम लोग सिलिका का यूज कर रहे हैं, वहाँ सिलिका का यूज नहीं करके जो हम लोग ऑर्गेनिक डाइज है, जो सिंथेटिक डाई, उसका यूज हम कर सकते हैं। देखिए ऐसा है कि ये दुनिया जो चल रही है या मैनेज है, वो ऐसे ही लोगों से जो रिसर्च बड़े बड़े लॉन्ग टर्म क्वेश्चंस लेके जो आप बात कह रहे हैं, उसके ऊपर बहुत सारा काम ऑलरेडी लोग कर रहे हैं, और जो लाइफ बढ़ा के ही पहुंचे हैं और इसके ऊपर भी बहुत काम कर रहे हैं। और डाई सेंसिटाइज की जो आपने बात की, आप इसको थोड़ा चेक करिए, आपका एरिया है केमिस्ट्री, बहुत सारा काम इसके ऊपर हो रहा है, बड़े बड़े हो रहा है सर, हम चेक। ठीक है, अब आती है बात इसके ऊपर। देखिए मैं बताऊं आपको, पहला इसीलिए ये कहा जाता है कि पहला स्टेप होगा कि हमको एनर्जी रिक्वायरमेंट कम करनी चाहिए। जी सर। ठीक, एनर्जी रिक्वायरमेंट कैसे कम होगी कि भाई आप अननेसेसरी वेस्टेज को अवॉइड करिए। इसलिए कहा जाता है कि कंजर्वेशन पहला स्टेप है कि आप अपनी जरूरत कम करिए। ठीक, दूसरा स्टेप हुआ एनर्जी एफिशिएंसी, अगर जरूरत है एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल करिए। ठीक, तीसरे नंबर पर आया कि अगर फिर भी जरूरत बची तब आप फॉसिल फ्यूल ना यूज करके ग्रीन सोर्स पर जाइए। अब ग्रीन सोर्स में हमने कहा सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है। आपने बात ठीक कही कि सोलर एनर्जी, हमने जब बहुत सारे सोलर प्लांट लग जाएंगे तो सोलर पैनल को डिस्पोज करने का भी कोई सिस्टम डेवलप होना चाहिए। जब एक जमाना आएगा 25-30 साल बाद के पैनल्स ही पैनल्स होंगे। हाँ सर, वही तो पॉलिथीन वाली स्थिति आ जाएगी ना सर। हाँ, तो इफ यू डोंट माइंड आई कैन स्लाइटली मेक इट पर्सनल। आप पॉलिथीन यूज करते हैं, जाते हैं बाजार तो लाते हैं पॉलिथीन या अवॉइड करते हैं? नहीं सर, अभी अवॉइड करते हैं। जब शुरू में नहीं था तो जो है इतना अवेयरनेस नहीं था, लेकिन जब से अवेयरनेस हुआ तब से हम बैग लेके जाते हैं। बात ये है कि हम एवरीवन हैज टू प्ले अ रोल। अब आई बात सिस्टम की, तो डिस्पोजल जो है, पैनल का डिस्पोजल, इस पे बहुत सारा काम हो रहा है। इंडिया में एक बहुत बड़ा पायलट प्रोजेक्ट इंडिया में भी हो चुका है, तमिलनाडु में बड़ा सक्सेसफुल, उसके रिकमेंडेशन जनरेट हो चुके हैं, मिनिस्ट्री और सरकार पॉलिसी मेकर्स उस पर काम कर रहे हैं। यूरोप में फैसिलिटीज बन भी गई हैं, वहाँ डिस्पोजल सक्सेसफुली टेस्ट होके इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर भी आ चुका है। लेकिन बात क्या है कि हम आज की स्टेज ये है कि यू हैव टू अडॉप्ट दिस, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू ग्रीन एनर्जी, साइमल्टेनियसली यू शुड पुश फॉर द डिस्पोजल सॉल्यूशंस आल्सो। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। और पूछे और पूछें साहब। सर एक क्वेश्चन था। जी जी, पूछे। सर जो हम लोग सोलर पैनल लगाएंगे, अगर कोई बिजली ज्यादा यूनिट बचे, हम जो
ग्रिड में भेजेंगे, आपने बोला आपने था। अपने बारे में बताया नहीं। हाँ सर। आपने बताया नहीं आप कौन है, कहाँ से और ओ किस सर, सब्जेक्ट। मेरा नाम प्रणय सेन है सर, जी असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन, जी। वेस्ट बंगाल से हूँ मैं। अच्छा। तो सर हम लोग जो सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी बचाएंगे, तो आपने बोला कि वो फिर ग्रिड में दे सकेंगे हम लोग जी जी। को। तो वो अगर हम लोग ये दे तो उसके उसको कैसे दे, मतलब इन्फॉर्म करना पड़ेगा क्या इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस को, या फिर? नहीं नहीं, इसका ऐसा है सिस्टम, व्हेन यू इंस्टॉल दिस प्लांट you will apply to your local, whatever you call that in your area, distribution engineer, substation, XCN. In that office you will apply that I want to install this 5 kilowatt plant in my house. So they will give you approval, and once you have the approval, then the rest of the system is automatic. Then you don't need to do anything. Your meter will record, and accordingly your bill will be generated. ओके सर। ओके। लोकेंद्र सिंह जी पूछें। सर नमस्कार। नमस्कार। सर मैं मोहित कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन, अमरोहा। हाँ पूछें। सर मेरा सवाल ये है सर, अगर हम सोलर पैनल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या इसके भी कोई साइड इफेक्ट हैं क्लाइमेट को लेके? आप दिख नहीं रहे हैं मुझे। सर मैं दिख रहा हूँ अभी। हाँ, तो क्लाइमेट को लेके जो सेटबैक है वो अभी हमने बात की। अभी काशीनाथ जी जो सवाल कर रहे थे कि जो सोलर पैनल्स का डिस्पोजल इम्पोर्टेंट है, दैट शुड बी डेवलप्ड। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। सर नमस्कार सर, जी आई एम किंगसुख पांडा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, जी झारग्राम, वेस्ट बंगाल। जी। सर मेरा 2 क्वेश्चंस है। एक क्वेश्चन है कि रूरल एरियाज में ये देखा जाता है कि स्ट्रीट लाइट में सोलर पैनल यूज करता है गवर्नमेंट, मगर गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट का, वहाँ पे क्यों सोलर पैनल, सोलर सिस्टम नहीं यूज किया जाता है? और जो स्ट्रीट लाइट में रूरल एरिया में यूज किया जाता है उसका बहुत मिसमैनेजमेंट है। एक साल बाद वो बहुत तो बिगड़ जाता है। ठीक है, ये कैसे? देखिए ये दोनों बातें जो आपकी हैं, दोनों से मैं काफी हद तक एग्री करता हूँ, लेकिन ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इशू नहीं है, ये इम्प्लीमेंटेशन इशू है। जो सोलर हो, ग्रीन हो, कंजर्वेशन हो, और चीजों के साथ भी हो सकता है। सो वी नेचुरली हम कितनी भी अच्छी पॉलिसी बनाए, अगर इम्प्लीमेंटेशन अच्छा नहीं है तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा। एंड इम्प्लीमेंटेशन शुड बी बेटर, इसमें कोई डाउट नहीं, मगर वो हमारे स्कोप से बाहर चला जाता है। ठीक है, और पूछें। यस सर, मैं संजय कुमार बोल रहा हूँ। सर मेरा जो क्वेश्चन था, गवर्नमेंट सेक्टर में क्यों, गवर्नमेंट ऑफिस में क्यों ये नहीं यूज किया जाता है? गवर्नमेंट तो प्रमोट करता है कि ठीक है, मैंडेटरी भी कर सकते हैं, मैंडेटरी कर देना चाहिए गवर्नमेंट सेक्टर में ही। क्यों मैं कह रहा हूँ कि जो आपका कॉलेज भी शायद गवर्नमेंट होगा सर, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत जगह लगाया, जैसे रेलवे स्टेशन पे और जगह पे तमाम। हाँ, इसमें देखिए मैं वो आ रहा हूँ उसके ऊपर। ऐसा है, गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी स्कीम थी जिसको कहते थे सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सेकी, CPWD स्कीम, जिसमें क्या था कि आपको, अगर आप एक गवर्नमेंट बिल्डिंग हो तो आपको अपनी बिल्डिंग देनी थी बस, और गवर्नमेंट के आइडेंटिफाइड डेवलपर्स आपके यहाँ पे वो प्लांट लगाते, और आपकी सेविंग में से वो ईयरली, मंथली पैसा थोड़ा थोड़ा लेकर अपनी कॉस्ट रिकवर करते ओवर 20-25 ईयर्स। हमने जो रूफटॉप प्लांट किया अपना 3.2 मेगावाट, वो उसी स्कीम में किया, बड़ी अच्छी स्कीम थी। लेकिन अब बात वही है कि कुछ जगह पे जो लोगों ने उसको, जहाँ ब्रेक हो रही है, जहाँ पे लीडरशिप ठीक थी, विजनरी, उसने उसको अडॉप्ट कर लिया क्योंकि उसमें कोई नुकसान ही नहीं था, ओनली बेनिफिट्स वर देयर। बाकी बहुत से लोगों ने नहीं किया अडॉप्ट। तो उस तरह की स्कीम्स रहनी चाहिए, और लोगों को भी थोड़ा, मेरा कहना है एक रीजन ये भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ प्रॉब्लम ये है कि वहाँ अवेयरनेस की भी कमी है, लोगों को मालूम ही नहीं है कि ये सब चीजें हैं। तो ये होना चाहिए, इसमें अवेयरनेस भी बढ़नी चाहिए, पॉलिसी भी बननी चाहिए, सपोर्ट भी मिलना चाहिए। लेकिन अच्छी स्कीम्स थी गवर्नमेंट की, लेकिन बहुत जगह लोगों ने उसका यूटिलाइज ही नहीं किया, यूज नहीं किया। चलें और पूछें। सर मैं संजय कुमार बोल रहा हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर एट जेपी यूनिवर्सिटी इन केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। जी सर अप्रोक्सीमेटली 5 किलोवाट का ये
प्लांट लगाने के लिए कितना कॉस्ट आता है? इट इज अराउंड 5 किलोवाट इज अराउंड आप 3 के आसपास मान लीजिए, 270 280 ऐसा मान लीजिए। उसमें गवर्नमेंट भी कुछ हाँ, देती है? एक आप देखिए ऐसा है, MNRE यानी जो मिनिस्ट्री है इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो 5 किलोवाट पे शायद 75,000 के आसपास सब्सिडी दे रही है, और कुछ स्टेट्स भी एडिशनल सब्सिडी दे रहे हैं। जैसे यूपी में शायद 5 किलोवाट पे 30,000 एडिशनल है, उसके अलावा है वो। अच्छा, आप अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग पॉलिसी है, लेकिन आप साइट पर देख सकते हो। मगर MNRE की इज फॉर थ्रू आउट द कंट्री। उसका एक पोर्टल है, MNRE साइट पर एक पोर्टल है, उसके थ्रू आप ये सब चीजें अवेल कर सकते हो। ये सब्सिडी है, बट दिस इज फॉर रेजिडेंशियल ओनली, ये कॉलेज के लिए नहीं है। नहीं रेसिडेंशियल ही पूछ रहा हूँ। हाँ, ठीक है, चलिए और पूछें। सर जैसा कि नमस्कार, मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह है और मैं अलीगढ़ में ही हूँ, राजकीय महाविद्यालय में, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। जैसा इन्होंने पूछा 5 केजी वाट का खर्चा पूछा इन्होंने, तो 5 किलोवाट में पूरे घर का इजीली चल जाए, कंज्यूम कर पाएंगे इजीली? देखिए ऐसा है कि ये जो सिस्टम है इजीली चलना तो थोड़ा सा एक वेग सी बात है, लेकिन आम तौर पे 5 किलोवाट इज मोर देन एनफ, इन द सेंस कि आपकी जो फाइनेंशियल सेविंग्स हैं वो बहुत होंगी, और आपका जो रनिंग बिल है वो काफ़ी हद तक कवर हो जाता है उसमें। और जो एक ये डिफरेंट एनालिसिस एक्सपीरियंस ये कहते हैं कि आज की तारीख में विद इन 5 ईयर्स, अराउंड 5 ईयर्स इज दी रिटर्न पीरियड। इतने टाइम में आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न हो जाएगा, इफ यू 5 to 6 ईयर्स अगर रेजिडेंशियल कंज्यूमर है, और अगर इंस्टीट्यूट है तो अराउंड 4 ईयर्स में रिटर्न हो जाता है। एंड जनरली नहीं, लाइफ तो इट्स लॉन्गर लाइफ सिस्टम। पैनल्स जो हैं आजकल आ रहे हैं वो 25 ईयर्स वारंटी उनकी होती ही है। तो इन द सेंस रात के लिए, जैसे मान लीजिए दिन में सोलर लाइट है तो उस समय ज्यादा, देखिए रात के लिए इनका क्या सिस्टम, उनके पास क्या बैटरी यूज करते हैं क्या? जो मैंने सिस्टम एक्सप्लेन किया है उसमें बैटरी नहीं होती, तो फिर रात में कैसे चलते हैं? हाँ मैं बता रहा हूँ, उसके ऊपर आ रहा हूँ। तो देखिए 2 ऑप्शंस हैं, एक क्या है कि आप सोलर एनर्जी जनरेट करिए और उसे बैटरी में सेव करिए और उसे फिर यूज करिए, लेकिन वो क्या है कि एक तो कॉस्टली है, और बड़ा मतलब अगर आप पूरे घर के लिए यूज करना चाहें नेचुरली आपको ज्यादा बैटरी चाहिए, कॉस्ट भी ज्यादा हो जाएगी, तो वो फाइनेंशियली वायबल नहीं है। इसलिए जहां पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी ज्यादा चैलेंज नहीं है वहां तो यही सिस्टम लग रहा है जो मैंने एक्सप्लेन किया। और जो रूरल एरिया साइट है, जो गांव है, वहां पे आपको फिर पैनल प्लस बैटरी सिस्टम लेना होगा, वो बैकअप के लिए लेना। ठीक है, तो ये तो डे टाइम सिस्टम है। जब आप once the sun sets down, your whole load of your house is on grid only. तो बैटरी वाले में सर कितना खर्चा बढ़ जाएगा फिर? बैटरी में एक्चुअली ऐसा सिस्टम ही नहीं बना पाएंगे आप। इसमें तो आप जो ये सिस्टम मैंने डिस्कस किया, इसमें तो क्या है कि आपको पता नहीं है, एक सीमलेस सिस्टम है कि सोलर एनर्जी भी कंट्रीब्यूट करिए, ग्रिड भी कंट्रीब्यूट करिए, बिल में पता चलता है बस। बैटरी में क्या है कि फिर आपको अलग के कुछ फैन चला पाऊं मैं, 1-2 फैन चला लूंगा, कुछ लाइट जला लूंगा, बड़े लोड्स आप नहीं चला पाओगे उस पर, है ना। तो ये प्रॉब्लम, इसलिए जो रूरल एरियाज हैं वहीं के लिए बैटरी प्लस पैनल सिस्टम रिकमेंडेड है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जिसको बोलते हैं, जो मैंने एक्सप्लेन किया, ये कहलाता है ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम। यही चलता है, यही फाइनेंशियली वायबल है, और you can say the best system available. सर मैं डॉक्टर शालिनी शुक्ला, राजेंद्र मिश्रा कॉलेज, सहरसा, बिहार, हिंदी विभाग से हूँ। जी सर आपकी स्लाइड सोलर एनर्जी मेरा बेटा भी देख रहा था बैठकर, तो उसका क्वेश्चन था कि जहाँ पर लाइट नहीं आती है और सोलर पैनल लगा हुआ है, तो अगर सूर्य नहीं निकलता है, where their sun not comes for 1 month, so that what will happen there? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है उनका। और देखिए इसमें क्या है, जो सिस्टम मैंने एक्सप्लेन किया उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
वजह ये है कि हम जो कह रहे हैं, ये जो सिस्टम है ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम, जब दिन है, जब सोलर एनर्जी अवेलेबल है तो ये कंट्रीब्यूट कर रहा है। शाम में तो सोलर एनर्जी नहीं है, तब आपका सारा रिक्वायरमेंट जैसे सर्व हो रहा था वैसे ग्रिड से सर्व हो रहा है। सुबह हुई आप उसी तरह से आ गए, शाम हुई फिर से आप ग्रिड के ऊपर चले गए। अब मान लीजिए कि महीना छोड़िए, जैसे हमारे रीजन में भी हो सकता है 2-3 दिन लगातार क्लाउडी डेज हो जाएं या रेनी डेज हो जाएं, तब उस कंडीशन में आपका सिस्टम पूरा सिस्टम ग्रिड से चलता रहेगा। जैसे ही सोलर एनर्जी जनरेशन शुरू हो जाएगा, अपने आप उधर से विड्रॉल कम हो जाएगा और सोलर एनर्जी कंट्रीब्यूट करती रहेगी। सोलर बढ़ता जाएगा जनरेशन, ग्रिड पार्ट कम होता जाएगा, सोलर जनरेशन कम होता जाएगा, ग्रिड पार्ट बढ़ता जाएगा। एंड दिस ऑल हैपेंस ऑटोमेटिकली। इसमें किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है कि हम बैठ के चेक करें। तो ये ग्रिड के साथ जब हमने इसे कनेक्ट किया है तो ये इसीलिए किया है कि सोलर इज ए वेरिएबल सोर्स। पता नहीं है उसका, दिन में भी ऐसा हो सकता है, कभी एकदम से क्लाउडी हो जाए, थोड़ा जनरेशन कम हो जाएगा। तो ये ग्रिड क्या कर रही है, उसके जो उसमें कमी या बेशी जो हो रही है उसको कंपनसेट कर दे रही है। तो यूजर के लिए इट्स एन एक्सपीरियंस, इट्स ए सीमलेस एक्सपीरियंस। यूजर के तौर पे आपको पता नहीं चलेगा कि हमें कोई कम हुआ या बढ़ा। जब आप बिल देखो तब आप देखते हो अच्छा इतना हमारा कम हो गया बिल इसमें। ये समझा आपके बेटे ने? सर एक क्वेश्चन इसमें और इसने ऐड किया सुनकर, एंड कॉस्ट विल आल्सो ग्रो अप इफ वी सेव फॉर 1 मंथ। क्या चीज बोलो? Cost will also grow up if we save it for 1 month because somewhere on the earth light sun never rise for 1 month. हाँ, so बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन, एंड आई एम हैप्पी यू आर अ वेरी ब्राइट चाइल्ड। हाँ, तो what he is trying to say is, when I have mentioned return on investment 6 years or 7 years or 5 years, if you have a climate where sun is not available for 1 month, so the ROI will increase. अगर मेरे अलीगढ़ में मुझे 6 years में रिटर्न हो रहा था इन्वेस्टमेंट, तो कोई रीजन ऐसा हो सकता है जहां पे सोलर एनर्जी इज लेस, उसका ROI बढ़ जाएगा, उसकी सेविंग क्योंकि कम हो। और दूसरी बात ये कि in the terminology of solar energy, if somewhere we have 300 sunny days, then we call it an ideal location for solar system. So for like in India, many places, rather most of the places, we have around 300, at least 300, or even some places more than 300 sunny days. That is why we have an ideal location. But it cannot be an independent source only. It needs support from some wind energy, some hydro energy. Coal is also continuing for say next 30-40 years, but its role is reducing. What is happening? The role of solar is increasing and the role of coal is decreasing. Ultimately, by 2070-80, what will happen? We will have the reverse situation what we have today. Like today, we have around 70% coal, rest is solar, wind, hydro. After 30-40 years, what will happen? 70% solar and wind, rest is coal and hydro. So this is how it is evolved. Okay? Thank you. सर मैं दीपक कुमार राजकीय महाविद्यालय बलिया से बोल। हाँ पूछे सर। चलिए, तो ब्रेक हो गया शायद, वो नहीं पूछ पा रहे। तो आई हैव वन क्वेश्चन। हाँ पूछिए सर। मैं सर डॉक्टर विजय कुमार फ्रॉम तिरकामांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी। जी सर, उसको जो सोलर पैनल है उसको बार बार डिस्प्ले की बात हो रही थी, उसका लास्ट डेट नहीं रहता है क्या? मतलब वो तुरंत खराब हो जाता है क्या? कितने साल बाद उसको डिस्पोजल करना पड़ता है? नहीं, जो पैनल्स अवेलेबल हैं, कमर्शियली अवेलेबल पैनल्स हैव अ वारंटी ऑफ 25 इयर्स। तो वारंटी 25 इयर्स है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो 25 इयर्स पे खराबी हो जाएगा। इट विल ब्रेक नहीं होगा, इट विल कंटिन्यू जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन 80% एफिशिएंसी पर, अपनी ओरिजिनल एफिशिएंसी पे। और जब तक वो ब्रेक नहीं हो देन इट विल कंटिन्यू जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन कभी ना कभी तो, और अगर वो खराब नहीं हो रहा तो ब्रेक तो हो सकते हैं ना। तो डिस्पोजल फैसिलिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है, रिसाइकलिंग एंड डिस्पोजल। ओके सर।
सर सोलर पैनल के एनर्जी ट्रैपिंग एंड ऑपरेशनल मैकेनिज्म क्या होगा, नट सेल में कुछ बताइए। It works on solar photovoltaic principle, और considering we have a diverse group of audience, उसको यहाँ डिस्कस करने का मैंने कोई जरूरी नहीं समझा उसका मकसद, मगर एक ब्रीफ तो बात यही है कि आप सोलर एनर्जी when it falls on solar cell because of photovoltaic effect it is converted into electricity। अगर आप इस फील्ड के हैं तो आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। सर सोलर पैनल कितने टाइप का होता है, एक ही टाइप का होता है क्या? नहीं, अगर घर में लगाए solar panels are of many types, polycrystalline, monocrystalline, then thin film, बहुत कौन सा सारे अच्छा type होता है? अभी कुछ सालों बहुत सालों से पॉलीक्रिस्टलाइन ही चलता था कमर्शियली, लेकिन अब मोनोक्रिस्टलाइन भी, क्योंकि मोनोक्रिस्टलाइन की कॉस्ट इधर कम हुई है तो मोनोक्रिस्टलाइन अब ज्यादा यूज हो रहा है, और आने वाले वक्त में मोनोक्रिस्टलाइन ही रह जाएगा, उसकी एफिशिएंसी थोड़ी बेहतर है। थैंक यू सर। चलिए, तो अब उम्मीद करता हूँ आप लोग थोड़ा इसको अडॉप्ट करेंगे, कन्वे करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज डिस्कसिंग एंड डिलिबरेटिंग ऑन दीज थिंग्स दैट विल लीड टू सम पॉजिटिव इफेक्ट्स। ठीक है, चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। 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 थैंक यू सर।